अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कल हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैटर, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें हमने पढ़े जो मैटर हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी ऑल मैटर is made up of particles. They are particulate in nature. Matter is particulate in nature. Particulate in nature, and matter is made up of particles. Matter is not continuous. Matter is not continuous, but is made up of particles. Second is they are very small, extremely small. These particles are extremely small, very very small. How small are these? ये हम इससे रियलाइज करेंगे जो हमने पढ़ा था, a small drop of water, small drop of water droplet. It contains as many as 10 raised power 21 particles of matter. Particles of water. Billions and billions of particles of matter are present in one small drop of water or raindrop. So these are extremely small. These particles, we cannot see them with naked eye, even under a powerful microscope. So what we see? We see aggregate of atoms, group of atoms, aggregate of atoms, large group of atoms, large group of particles. ये हमने कल पढ़ा डिटेलर में। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल मैटर। ये जो मैटर है, ये पार्टिकल इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक, नंबर फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। यानी कल हमने पढ़ा जो मैटर है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, but it is made up of particles. Those particles, this is the sand particles, just like sand particles. See? Now first is these particles which make up the matter around us, they have spaces between them. These spaces are called interparticle spaces or voids. These spaces are called interparticle spaces or voids. These are called voids. Voids are interparticle spaces or interparticle spaces. हमने कल पढ़ा था पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, या एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या इंटर एटॉमिक स्पेस बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं। जो पहले कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles which make up the matter have spaces between them. Matter is not continuous but is made up of particles. These particles have spaces between them. These spaces are called voids or interparticle spaces. ठीक, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एक एक्टिविटी करेंगे। हम सपोज एक सिलेंडर में लेंगे, जो सिलेंडर हम लेंगे, सपोज दिस इज़ द सिलेंडर, इट इज़ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, यानी यहाँ पर लिखा है कितना ml, यहाँ तक 500 ml, सपोज 100 ml, 50 ml, 75 ml, 50 ml, यहाँ पर ग्रेजुएटेड, इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक, इसमें हम लेंगे सपोज 100 ml ऑफ वाटर लेंगे। लेट्स टेक 100 ml ऑफ वाटर इन दिस सिलेंडर। इसमें हम एक स्मॉल पिंच ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हम इसमें शुगर या सॉल्ट ऐड करेंगे। जब जो हम सॉल्ट ऐड करेंगे, हम यहाँ देखेंगे इसका जो लेवल है राइज नहीं हुई है। बट इफ़ वी ड्रॉप more amount of salt, suppose
हम 10 ग्राम या 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, यहाँ जो इसकी लेवल है वो थोड़ा बहुत राइज होगी, थोड़ा बहुत क्या होगी, राइज। यानी इफ़ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर, the sugar gets dissolved, yeah, salt gets dissolved in it, but there is no this detectable rise in level. But if we add large amount of water, suppose 5 gram in this cylinder, with the level of water rises, ये देखा गया 2 to 3 ml ये राइज होगा, ठीक। इसका ये एक्टिविटी यही शो करती है जो ये है वाटर है, वाटर, देयर आर स्पेसेस इन वाटर, यानी देयर आर स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, दे हैव स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स, शुगर पार्टिकल्स, salt particles, or they take these spaces, they occupy these spaces, some of the spaces. As a result, जो level है, level of the solution in cylinder rises, it rises. From this experiment, conclusion यही है, there are some spaces between the particles of matter. So matter is not continuous but particulate, and these and the matter and the particles of matter have spaces between them, but these spaces differ from particle to atom, matter to from matter, from one kind of matter to another. या आपको या खुद या आगे भी बढ़ेंगे, यानी वाटर में ज़्यादा ये डिज़ॉल्व होगा, दूसरे जो लिक्विड में इसमें ये कम डिज़ॉल्व हो सकता है, ठीक। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्पेसेस, जो एक किस्म के मैटर में ज़्यादा स्पेस होगी, दूसरे किस्म के मैटर में कम स्पेसेस होंगे, यानी दो स्पेसेस जो है दे डिफर, द साइज एंड नंबर ऑफ these spaces, the size as well as the number of these spaces differ from one kind of matter to the another. This is the first characteristic. First characteristic, particles of matter have spaces between them. ये कैसे हमें क्लियर होगा, क्योंकि हम जब हम शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं वाटर में, वो गायब होता है, वो डिसअपियर होता है। एक्चुअली डिसअपियर नहीं होती है इसके पार्टिकल, शुगर पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल, वो क्या, इनको जो पार्टिकल है वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इट इंडिकेट्स दैट, इट शोज दैट द मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये हो गए फर्स्ट। सेकंड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जो हमने पढ़ा था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये पार्टिकल्स स्टेशनरी हैं या मूव हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं। यानी सपोज दिस इज द मैटर, it contains particles, it has particles in it, it is made up of particles, these particles have space between, जो हमने पढ़ा। अब ये क्वेश्चन है, आर दीज पार्टिकल स्टेशनरी और दे आर मूविंग। इसके लिए इसका आंसर देने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट ये घर में जो अगरबत्ती हम जलाते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसेनेसिटिक। अगर हम कमरे में लगाएंगे इंसेनेसिटिक, इसको हम जलाने के बगैर इसी कॉर्नर में रखेंगे। जलाने के बगैर जब हम रखेंगे, जो इसका जो स्मेल है वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसका स्मेल तभी हम ले पाएंगे, यानी इसका स्मेल जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक तभी जाएगी, यहाँ इन द रूम, कमरे में तभी फैलेगी जब तक न हम ये जलाएंगे, ठीक। जब तक नहीं हम जलाएंगे, जो ही हम इसको जलाएंगे, ये क्या होगा, these the particles of the insensitic जो in the form of smoke निकले, इससे यहाँ smoke निकल गए, यानी smoke जो है इसमें जो particles these in mix with the air which is present in the room, as a result it is ये scatter होगा in the entire room, and we are able to feel the smell of the insensitic। एक्चुअली जब हम जलाने के बगैर रखेंगे
तब जो इसका टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एज अ रिज़ल्ट ये दूर तक नहीं, इसका स्मेल दूर तक नहीं जाएगा। इसका स्मेल आएगा मगर इसके लिए हमें क्या, नाक, हमारी जो नाक है इसको क्लोज लेनी है इन सेंसिटिव को, तभी हम इसका स्मेल ले पा सकते हैं। ठीक, जो ही हम इसको लिट करेंगे यानी जलाएंगे तब इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज यानी मूव, ये मोशन में ज़्यादा आएंगे, मूव ज़्यादा होंगे। ठीक, with greater speed as a result these particles scatter in the entire room and we are able to feel the smell of the insensitive. This indicates that particles which make up the matter, they are continuously moving, they are not at rest, they are continuously moving. इसी ये आगे हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन से, ये क्लियर, ये एक एविडेंस है, एक्सपेरिमेंट है, इससे हम इसे पता चलता है द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर मूविंग। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, दैट इज दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. Suppose this is the particle, they attract each other. Yani these particles are bound by forces. These forces are called interparticle forces. Interatomic forces अगर particle atoms हैं, अगर particle molecules हैं तो फिर उनको बोलेंगे intermolecular forces। ठीक, मगर जो फोर्स हैं, इट वेरीज, द फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, इट वेरीज फ्राम मैटर टू मैटर। शायद सपोज आयरन नेल है, इसको अगर हम आयरन नेल लेंगे, वो दूसरा लेंगे हम चाक जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पे। ठीक, आयरन नेल को तोड़ना या ब्रेक करना, ठीक, इसको मुश्किल है बनस्बत एक चाक से। ठीक, क्यों, जो आयरन नेल में इसमें जो पार्टिकल्स हैं, दे आर स्ट्रांगली बाउंड, द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन इंटरएटॉमिक फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन नेल आर हाई लार्ज देन द interatomic forces which are present in interparticle forces which are present in chalk. That is why it is difficult to break a iron nail than a chalk. It is tough, not difficult, it is tough. It is tough to break to break an iron nail than a chalk, because in chalk जो forces particles हैं, they are loosely bound than particles of an iron nail. This indicates that particles of matter attract each other. यही हमने बोला, the forces, interparticle forces of matter varies from matter to matter. Shabash. These are some characteristics of particles of matter. So first characteristic यही है, particles of matter have spaces between them. Second is particles of matter are continuously moving, they are not stationary, they are continuously moving, they are randomly moving in all directions. Particles of matter attract each other, yani matter, the particles which make up the matter, they are bound by forces, strong forces. These forces are called interparticle forces. इसके लिए हमने illustration भी दिए आयरन नेल एंड चॉक की। जो आयरन नेल है, इनमें जो फोर्सेस हैं, दे आर स्ट्रांग, और जो इंटरपार्टिकल फोर्स हैं चॉक में, दे आर वीकेस्ट। यानी आयरन नेल इज हेल्ड, द पार्टिकल्स ऑफ iron nail are held together by weaker forces of attraction than the iron nail. These are the characteristics of particles of matter. And thanks.